Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. So this is lecture number 15, and the chapter is third, where the heading of this chapter, as we all know, that motion in a straight line, and this physics is belonging to class 11 NCERT physics. So this is the concept all about numericals part 3. So we already solved huge number of numericals, somewhere around 8, uh, and this physics is my version of beta series. Fine. So, my dear kids, listen up. Okay. So, first of all, I'm going to read this question, my dear kids. There is my one request. So, my YouTube channel's name is Physics Indian Professor. Here you can see Physics Indian Professor. This is the YouTube channel. So, where I regularly upload my videos, this online classes videos at my YouTube channel. Anyhow, so let us read this question first, my dear kids. This is the homework which I given to you peoples. Uh, this is the ninth question. A boy standing on a stationary lift, open from above, open from above, throws a ball upwards with the maximum initial speed. ठीक है, तो ये क्या करेगा बंदा, मतलब मैक्सिमम स्पीड के साथ फेंकेगा. So how much maximum initial speed is there, my dear kids? It is 49 meter per second. Now, how much the time does the ball take to return to his hands if the lift starts moving up with a uniform speed of 5 meter per second? ठीक है. And he again throws the ball. ठीक है. How long does it take to return to his hands? So we can uh, highlight two things. दो से तीन चीजें हम हाईलाइट कर सकते हैं. One, we are saying that open from above, but the lift is stationary. Another one is again open from above, but with the lift is moving with a uniform speed. कितना uniform speed बच्चों? With 5 meter per second. तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या stationary lift and uniform speed both are one and same? Stationary in the sense, stationary मतलब किराना दुकान नहीं. स्टेशनरी इन द सेंस इट इज एट रेस्ट. जब लिफ्ट रेस्ट पे हो और जब लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हो. ठीक है. सो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है. तो यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में क्या सिमिलैरिटी है? बोथ आर इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ इनर्शिया. मेरी बात समझो बच्चों. बोथ आर इंडिकेटिंग कौन सा? वन इज रेस्ट, जो कि हम स्टेशनरी कह रहे हैं. अंदर वन इज यूनिफॉर्म speed, which we are calling it as uniform motion. ठीक है. So what these two are indicating? The state of inertia. Now what is inertia, my dear kids? It is the property of any body. किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है ये. ठीक है. तो अभी ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? सो दिस प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट्स इनएबिलिटी. क्या रिफ्लेक्ट करता है? इनएबिलिटी. नाउ व्हाट इज इनएबिलिटी? तो inability of any body to change its state of rest by itself. मेरी बात समझो बच्चों. Keep a stone, a piece of stone at a plane surface. ठीक है. And keep it for 1 hour, 2 hour, 3 hour. ठीक है. 3 घंटे तक आपने इस piece of stone को रखा. And that stone will not be able to change its position of rest. It means that the displacement will be 0, क्योंकि यहां से डिस्प्लेस हुआ ही नहीं वो. Why? Because it is a non-living object. Since it is a non-living object, it will be having inability property to change its position of rest from its state of rest. ठीक है. तो वो उसकी inability है. तो ये प्रॉपर्टी है. तो इस इनएबिलिटी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? वी आर कॉलिंग इट एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. inertia of rest, inability of rest to change its position of rest. ठीक है. Now say for example a vehicle is moving with 2 meter per second. So this vehicle will move for next 20 seconds. तो मतलब 1 सेकंड में अगर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ये व्हीकल,
in a particular direction. Okay, say for example it is carrying uniform velocity. तो next second में क्या करेगा? It will be going to cover 2 meter. So for 20 seconds it will be going to cover 2 meter, means overall 40 meter. ठीक है, तो 40 meter of distance is covered by what? By vehicle. ठीक है, तो 40 मीटर को कैसे कवर किया इसने? For every seconds 2 meter of distance covered by this body in a particular direction. तो what it means for? It means for uniform motion, means the speed is not getting increased. Why the speed is not getting increased, my dear kids? Just because no force is acting from outside on that moving body. तो वो जो बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, say for example earth is moving in a circular orbit. Say for example earth is moving in a circular orbit, not in elliptical orbit. Now where it is revolving? It is revolving around the sun. अगर अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसका स्पीड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है. नाउ से फॉर एग्जांपल अर्थ इज मूविंग 1000 मीटर per second. Earth is moving with 1000 meter per second. ठीक है, so for every second how much it will move? 1000 meter. तो जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, so the speed will not be going to decrease. जब तक आप उसको पीछे से पुश नहीं करोगे, the speed of the earth will not be going to increase. It means that there will be no change in the uniform motion of the earth around the sun. So that is called as its inability. अपने आप से वो अपना स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा, ना ही स्पीड डिक्रीज करेगा. So this is what we are seeing with the earth. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया. Now say for example merry go round. When you go to Siddheshwar Jatra or else somewhere else, okay, fun fair. If you go to fun fair, you will see the merry go round, है ना? तो merry go round में आप जब बैठते हो, the pushing person, if no pushing person is there and merry go round को एक uniform speed दिया है, avoid the air resistance which is surrounded to that merry go round. Now let me tell you one thing my dear kids, अगर merry go round 20 meter per second से क्या कर रहा है? Circulate, rotate कर रहा है about its center of axis, ऐसे 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second. तो बाहर से किसी ने पुश नहीं किया, ना ही उसको किसी ने रोकने की कोशिश की. So that state of uniform motion will be going to continue for long period of time. Why? Because first one, there will be no air resistance with the which is opposing the uniform motion of the what? merry-go-round, है ना? दूसरा चीज क्या है? No external force is acting either to stop, either to increase the what? Speed. Clear हो गया? So this is called inability. It means that we are seeing both either uniform motion or rest as a state of inertia. तो दोनों एक ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है. Okay, so why this much of explanation you are giving, sir? Because my dear kids, जब तक हम इन चीजों को इलैबोरेटिव वे से नहीं देखेंगे, तब तक कंसेप्ट्स हमको समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, तो हमको तो चीज पता लगना है ना कि either if we are taking the lift, we are taking a lift, so that lift, है ना, वो lift क्या है? So it may be at rest or it may be at uniform motion. दोनों पे सेम चीज लागू होगा. So if the person is standing here, okay, and he is throwing a ball, that red ball, sir, red सारा चीज red, तो कुछ डिफरेंट कीजिए बोले तो मैं ग्रीन कर दूंगा. ठीक है, so now this ball will be thrown in the upward direction. ठीक है, so this ball will be going to reach the maximum height or maximum point of the ball. ठीक है, so then it will come back to his hands. So basically while traveling
this ball throughout the distance. अगर मैं इसको distance बोलूं तो ये भी distance बनेगा, मतलब total distance कितना होगा, d plus d is equals to 2d. ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऊपर जाने के लिए बॉल कवर कर रहा है और उसके लिए जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट. ठीक है, जो कि ऊपर वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए लेगा. एंड द बॉल विच इज कमिंग बैक टू हिज हैंड्स एंड वॉट एवर द टाइम इज टेकन इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, नाउ हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स. मतलब एक तो ऊपर वाला जाते वक्त आपने काउंट किया, डिस्टेंस तो दोनों तरफ सेम है. If the distance is same for both of the cases and if we neglect the air resistance, ऐसे conditions में आपको air resistance को लेना नहीं है because they have nowhere given air resistance, so we are neglecting the air resistance. It means that whatever the time has been taken by the ball to go from initial point of his hands to the maximum point, it will take the same timing to reach up his hands when the ball is returning back to his hands from the maximum point. So if the lift starts moving up with a uniform speed, कुछ नहीं फर्क होगा because both states are same. Inertia. चलो, सृष्टि नांदियाल, वैष्णवी मठ, रक्षिता, परिजैन. Okay, fine. Listen up, my dear kids. And he again throws the ball. मतलब कब, जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, एज आई सेड यू. ठीक है, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या. ओके, यू गॉट दैट. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड्स, मतलब रेस्ट का भी बोल रहे हैं और यूनिफॉर्म मोशन का भी बोल रहे हैं, दोनों केसेस में सेम ही होने वाला है. नाउ व्हेन द बॉल इज reached maximum point, okay, so when the ball has reached maximum point, the final velocity of the ball will be 0 and the initial speed is how much, that has given 49 meter per second. Okay, so we have final velocity, we have initial velocity, right? Now what we are going to count here is time of ascent. Time of ascent. ठीक है, either you take for the ball as for ball at rest. ठीक है, for ball at rest, time of ascent कितना होगा, t is equals to ta is equals to question mark. ठीक है, now let me tell you one thing, my dear kids. When the ball is moving, when the ball is moving upward in the upward direction, as we all know that the gravity direction will be towards the earth surface. ठीक है, तो gravity, acceleration due to gravity जब भी in the direction of gravity रहेगी, तो acceleration का value हम क्या लेते हैं, it can be taken as, acceleration due to gravity can be taken as, क्या होगा बताओ, फट से बताओ. So that can be taken as a is equals to plus g. ठीक है, if the ball is moving upward means a is equals to minus g. So while counting the time of ascent, while counting the time of ascent, what we are going to do, we are going to do, wait my dear kids, what we are going to do, okay, so listen, so a is equals to minus g. ठीक है, अगर a is equals to minus g मिलेगा, so I'm going to bifurcate here values. ठीक है, हम लोग तो टाइम ऑफ ascent फाइंड करने वाले हैं, we should bifurcate in terms of unknown and known quantities. तो टाइम ऑफ ascent को फाइंड कर लो और टाइम ऑफ डिसेंट को फाइंड कर लो. सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू TA प्लस TD, है ना. तो नोन क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड देन v इज इक्वल्स टू 0, so a is equals to minus g, that can be written as minus 9.8 meter per second square. So you can use kinematic first equation, kinematic first equation. Okay, कितना आता है देखो बच्चों. So v is equals to u plus at. So this can be written as v is equals to 0, u is equals to 49, है ना, 49,
plus what is A? That is minus 9.8 into T, time of ascent. So T can be modified with the time of ascent. So 49, if you shift it on the left hand side, that will become minus. So this can be written as minus 9.8, ठीक है, is equals to time of ascent. So 9.81 जा और minus 49, क्या minus minus cancel होगा? I think this will be 5, right? So time of ascent is equals to 5 second. So same way, yeah. So same way, what you are going to do, my dear kids? हाँ, तो सेम वे के लिए आप क्या करोगे, जब बॉल नीचे आएगा, दिस इज फॉर टाइम ऑफ असेंट, ओके, एंड व्हेन यू आर राइटिंग फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, ये फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला अगेन फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, वेयर v will be equals to the same speed 49 meter per second, है ना, और u is equals to 0. Are you getting my point, my dear kids? And a is equals to what it will be going to become, a is equals to g plus g, so that can be written as 9.8 meter per second square. So this can be written as time of descent, okay. So t is equals to td. Now this can be written as 49, so u is equals to 0. So 0 plus g, means you can write 9.8, okay, into td. So 49 divided by 9.8 is equals to td. So this can be written as td is equals to 1 za 5 za, so 5 seconds. So time of descent is also 5 seconds, ठीक है. So total time taken to cover the whole distance, okay, by the boy who has thrown to that ball for the maximum height, and the ball will return to his hands. So the total time taken is ta plus td. So this can be written as 5 plus 5 is equals to 10 seconds. So total time taken is 10 seconds. Is that clear, my dear kids? Yeah, by adding both 10. Vaishnavi Math, Priyanka Rathod, uh, Priyanka Rathod, Rakshita Kamble, Shrishti Nandyal. Okay, fine. I believe that you peoples have got this, right? Pari Jain, Aishwarya and Saundarya, Priyanka, Vaibhavi, Pawar. Okay, fine. Uh, okay. So let me move to the next numerical, my dear kids. ठीक है, अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं. So my dear kids, this is the 10th numerical. Wait. So this is the 10th numerical, my dear kids. Fine. You got that. Okay. Rakshita Kamble. Nice. So listen up, my dear kids. We are going to solve the 10th numerical. So once you read this numerical, my dear kids, so it is all about a cyclist. ठीक है, तो cyclist के बारे में है. तो ये cyclist क्या करेगा बंदा, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. ये cyclist की क्या स्टोरी है. बस ये बंदा क्या कर रहा है. Okay, fine. Yeah, you people have did. Parijain, you send that solution, as well as I think Rakshita Kamble. Probably I don't remember that. Shrishti Nandyal. I don't remember that properly. So 21.4 kilometer per hour. Priyanka Rathod, you to send that. Okay, fine. Yeah,
Shushi Nandel, you sent that, I think so. Okay. So my dear kids, listen up. So here is the story of cyclist. ठीक है, मैं एक साइक्लिस्ट हूं, तो समझो कि ये मेरी स्टोरी है। और मैं गया हूं साइकिल लेके एक सर्कुलर पार्क में। किस में गया हूं? सर्कुलर पार्क, नॉट स्क्वायर पार्क। If you go for the Barakaman, it is a square park, right? So I have chosen a circular park, which is just like a stadium. ठीक है, चलो, तो बड़ा वाला है समझो, and the radius is somewhere around 1 kilometer from the center. ठीक है, so I have reached to the circular park center. ठीक है, from there I'm going to start the journey of my cycling of today's exercise. मान के चलो आज का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्या करता हूं, ओरिजिन ओ बोलूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज पी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज क्यू। फाइन, सो I'll start my cycling from O to P. So the radius is equals to 1 kilometer. ठीक है, ये कहानी है। And after reaching point P, so I'll move along the path of PQ. पता नहीं कितना है ये, the length of the path we don't know, but the radius we know that it is in terms of kilometer. तो अगर मैंने रेडियस इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर लिया है, सो आई शुड टेक PQ इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ओनली। ठीक है, चलो, ओके, लिसन अप माय डियर किड्स। फ्रॉम देन अगेन फ्रॉम Q व्हेन आई रीच, आई विल कम बैक टू O। ठीक है, सो दिस इज अगेन द सेम रेडियस। It means what I'm trying to say you, my dear kids, OP is equals to OQ is equals to 1 kilometer. क्या मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं बच्चों? चलो, अगर ये सही है, ओके, नाउ लिसन अप माय डियर किड्स। PQ is, you know my dear kids, PQ is equals to पूरा जो एक सर्कल घूमने के बाद कितना मिलता है बताओ मुझे? कैन वी राइट इट एज 2 पाई? ठीक है, इफ इट इज 2 पाई, तो 2 पाई में से ये जो हिस्सा है ना, आफ्टर रिवॉल्विंग दिस विल बी 2 पाई। ठीक है, तो इसमें से ये जो हिस्सा है ना, दिस इज 1/4। ओके, सो कैन वी राइट दिस एज 1/4, मतलब 2 पाई का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है, अगर ये ऐसा है, सो कैन वी राइट PQ इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 4। सो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाय 2। सर व्हाट इज पाई? पाई इज इक्वल्स टू क्या? 180 डिग्री, मतलब कितना? 360 हो गया। तो 360 का हमने चारवा भाग बना दिया, तो कितना मिल गया हमको? बताओ, फट से बताओ। सो आर वी राइटिंग दिस एज 90? तो पाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 180 डालूं तो डिवाइडेड बाय 2 डालूं तो मुझे 90 मिला, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है ना, मैंने इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लिखा, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्री लिखा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? ओके, रक्षिता कांबळे, वैष्णवी मठ, सृष्टि नांदयाल, प्रियंका, ओके, fine my dear kids, very good. Parijan, good. Aishwarya and Saundarya, good. Priyanka Rathod, good. So you peoples have got this, what I'm trying to convey you peoples। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया। नाउ ये कहानी आपको पता चल गई, and what they are trying to tell you into the question, I'm going to elaborate in a very sophisticated way। Since they are saying that, मैं हाइलाइटर लूंगा, लेके बोलूंगा कि a cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer। तो O से लेके P तक रीच करने के लिए 1 किलोमीटर चाहिए। ठीक है, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure। मतलब यहाँ पे O से लेके P तक एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, P से लेके Q तक एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर Q से लेके O तक फिर से एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। Overall 3 displacements have been taken। okay, but the net displacement 1 कौन सा था? वो OP का था, since we are showing the direction, and PQ
is another displacement which is along the curvilinear, मतलब curve पे है. OP कहाँ पे था? Rectilinear, मतलब straight path पे था. Then QO, this is also along the straight path. Since we are showing into two rectilinear as well as one curvilinear path पे direction दिखा रहे हैं हम, so we are calling it as three displacements. So तीनों को मिलाने के बाद क्या मिलेगा? Total displacement. That is called as net displacement. ठीक है. Now tell me that, my dear kids, Rakshita, Vaishnavi, Pari, tell me that, you know what, जब displacement कहते हैं, what is the definition of that? The shortest distance between initial and final point. ठीक है. Okay. Yeah. So O पे, O से निकला था, फिर O पे आके रुका, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. प्रियंका राठौर. ओके. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर वन एंड सेम. तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो तो जीरो हो गया ना. सो यू गॉट योर फर्स्ट आंसर. ठीक है. तो देखो, इफ द राउंड ट्रिप, ये राउंड ट्रिप कहां पे बताओ मुझे, फट से बताओ. राउंड ट्रिप इज टेकिंग प्लेस, राउंड ट्रिप इज टेकिंग प्लेस हियर. कहां पे? OPQ. कहां पे? OPQ. यहां पे राउंड ट्रिप हो रहा है. एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, पूरा घूमने के लिए O से लेके P तक, P से लेके Q तक, फिर Q से लेके O तक. ओके. सृष्टि नांदयाल, परिजैन, रक्षिता, प्रियंका, आर यू गेटिंग? तो ये जो पूरा राउंड ट्रिप है ना, इट विल टेक 10 मिनट्स ऑफ टाइम. कितना? 10 मिनट्स. नाउ अगर 10 मिनट लेता है O से लेके P तक, P से लेके Q तक, फिर Q से लेके O तक, इतना घूमने के लिए. ठीक है. ये तो आपका राउंड ट्रिप है. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. सो एज आई सेड, आगे पढ़ते हैं. द नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट. तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये इन टर्म्स ऑफ मीटर करना पड़ेगा आपको. नाउ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, यू शुड फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर. तो अभी मैंने जो बोला था, O से लेके फिर वापस O पे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सो नेट डिस्प्लेसमेंट is equals to 0 meter per second. ठीक है. Now if I want to convert this in terms of, not, sorry, 0 meter per second नहीं, हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट स्पीड एंड वेलोसिटी. सो इफ दिस इज मीटर, तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ यू आर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यू नीड टू राइट 0 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 3 मीटर. सो यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप? 0 into 10 raised to 3, है ना? नहीं, 0 into 10 raised to minus 3. ठीक है. ये 10 raised to 3 का किलो बनाया मैंने, है ना? सो 0 divided by 10 raised to 3 किलोमीटर. तो आ क्या रहा है बताओ मुझे? 0 किलोमीटर. सो यू कैन कन्वर्ट इवन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर आल्सो. किसके लिए? नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है. चलो बच्चों, ये तो हमने पता चल गया नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा लिखना है. नाउ एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं. सो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी V एवरेज. ठीक है. इस पे एरो मार्क डालते हैं सो दैट वी कैन सिंपली डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट. तो नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज के लिए आपको नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. ठीक है. सो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 था. टोटल टाइम टेकन कितना था? 10 मिनट्स का आपने क्या बनाना है? यू नीड टू मेक इन टर्म्स ऑफ आवर. ठीक है. तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना? सिंस वी ऑल नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना, फिर 10 मिनट इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? सो 1 आवर इज इक्वल्स टू, वी ऑल नो दैट, 60 मिनट. ठीक है. सो 60 इफ यू शिफ्ट हियर, so that can be written as 60, 1 by 60 hour is equals to 1 minute. ठीक है. तो अगर आप इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई होगा. so 0 0 got cancelled, so 1 by 6 hour is equals to 10 minute. मतलब if you are writing 10 minute, so this will be equals to how much? This will be equals to 1 by 6 hour. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो
1/6 आवर, अगर ये आप किलोमीटर लिख रहे हो, सो यू कैन शिफ्ट दिस 6 अपवर्ड्स, है ना। तो अगर आप अपवर्ड्स शिफ्ट करते हो, 0 6 जा 0, so 0/1 is 0, so 0 kilometer per hour, so this is nothing but the value of average velocity. Now the value of average speed, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की मैं क्या करूंगा, v एवरेज लिख दूंगा, so I'm not going to write the arrow mark over the average v, ठीक है। एरो मार्क अगर लगाता हूं, so it is showing the direction, so I am showing the average velocity, ठीक है। Now listen up my dear kids, so this is equals to, I'm using the brown color, so bifurcation properly हो जाए, ठीक है। okay, so average speed, तो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर ली, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। नाउ वी नीड टू गो फॉर द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कितना है बच्चों, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो दिस लिंक विल बी गोइंग टू कट विद इन 1 मिनट। तो टोटल पाथ लेंथ आपका है ओपी प्लस पीक्यू, ठीक है, प्लस क्यू ओ। तो अभी देखो ओपी कितना है, 1 है, पीक्यू कितना है, इट इज पाई बाय 2 है, सो पाई बाय 2 किलोमीटर, एंड दिस इज आल्सो 1, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस पाई बाय 2, है ना। सो 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 प्लस पाई कितना है 3.142 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होता है 7.12, 7.142 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, दिस शुड बी रिटन एज 3.57, क्या है ये इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, सो 3.57 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना 1/6 आवर, तो 6 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है आंसर, सो 21.4। सो लिसन अप माय डियर किड्स, सो वी वेर फाइंडिंग क्या, v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है। सो वी वेर फाइंडिंग एवरेज स्पीड। सो टोटल पाथ लेंथ कितना था बताओ, टोटल पाथ लेंथ वाज, फट से बताओ यार, 3.57 kilometer. So within how much time? Yeah. So this is covered in 1/6 of an hour. So 6 को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है 21.42 किलोमीटर पर आवर। So this is your average speed, ठीक है। So this is it my dear kids, ये वाला तो आपको पता चल गया, परी, वैष्णवी, प्रियंका, प्रियंका राठौड़, ठीक है, सृष्टि, रक्षिता, ओके वेरी नाइस माय डियर किड्स, वैभवी पवार, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, ओके प्रियंका, नाइस। सो शैल वी मूव फर्दर माय डियर किड्स, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको टाइप्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब मैं लिखूंगा, ठीक है। ओके सो माय डियर किड्स, जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था वो कौन सा था, 10th था, सो इज दैट 10th और 11th? Okay, fine. So let us go for the 11th numerical, my dear kids. Listen up. 11th वाले न्यूमेरिकल को जाएंगे, ठीक है। सो रेन इज फॉलिंग, बरसात गिर रहा है, रेन इज फॉलिंग। सो व्हेन वी हियर दैट विल गॉट अमेज कि यार बरसात गिर रहा है उसमें भीगे, चलो भीग लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो बरसात कैसे गिर रहा है सर, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आएगा, विद अ स्पीड, विद अ स्पीड, ठीक है, ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ वुमन, चलो यार यहाँ पे वुमन आ गया, आई थिंक ऑल गर्ल्स
को मजा आएगा ये चीज देखने में। वुमन आ गया ना यहाँ पे, वुमन राइड्स अ बाइसिकल, चलो अच्छी बात है। वुमन इज राइडिंग अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ कितना, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, चलो ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, चलो ठीक है। डायरेक्शन मतलब बरसात गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन से। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, what is the direction in which she should hold her umbrella, her umbrella, ठीक है। चलो क्या ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया बच्चों? नाउ लेट मी टेल यू और लेट मी मेक यू रिमेंबर, ओके। ऐश्वर्या, सृष्टि, परी, लिसन अप माय डियर किड्स। देखो बच्चों, रक्षिता, अ वुमन इज मूविंग ओवर द बाइसिकल, ठीक है। चलो मैं आपको बाइसिकल, एक बाइसिकल ड्रॉ करके दिखाता हूं जिसपे एक बच्ची बैठी हुई है, ठीक है। वेट माय डियर किड्स, सो आई एम पुटिंग अ डायग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ जिसपे एक बच्ची बैठी हुई है। अरे वेट करो थोड़ा सा, दिखने में मजेदार होना चाहिए, जिसको देखने के बाद इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, फाइन। यहाँ पे एक बच्ची बैठी है, चलो ठीक है। ओके, सो पैडल को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, हियर आर द पेडल्स, ठीक है। चलो बना दिया जैसे तैसे डायग्राम, ओके। सो सर हाथ कहाँ पे है, वेयर आर द हैंड सर, सर चोटियां कहाँ पे है, सर स्माइल कहाँ पे है, इट इज हियर, सर आंखें कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलो बच्चों इतना मैं निकाल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता, ठीक है। ओके, ओके, नोज कहाँ पे है, नोज नहीं है प्रियंका, प्रियंका राठौड़, ओके। इतना एडजस्ट कर लो यार, टुडे इज मेंस डे, व्हाटएवर रक्षिता, आई डोंट नो दैट। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है, तो डायग्राम को और नहीं बिगाड़ना चाहूंगा, ओके फाइन। लिसन अप माय डियर किड्स,
So this is what she is, woman. So moving with a speed. कितने स्पीड से जा रही है बंदी? So she is moving with a speed. तो थोड़ा सा इसको खींचूंगा ऐसे, है ना? Okay. So moving with a speed of 30 meter per second. So whenever you're showing the movement into the physics, so you need to show along the positive x direction. So it's a convention in physics. मतलब आपको जब भी movement दिखाना है लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को दिखाना है, ये चीज आप याद रख लो. Now when the rain is falling, so it is falling like this. ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ. मतलब रोड कैसा है? द रोड ओवर विच द गर्ल इज मूविंग. तो लड़की अगर मूव कर रही है तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो लड़की कहां पे है? गर्ल इज हियर विथ हर साइकिल. ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, यू आर सीइंग फ्रॉम द अपवर्ड्स. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. So woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second. Okay, sorry, मैंने 30 meter per second ये गलत लिख डाला. So it is 10 meter per second. So it is the speed of the bicycle. ठीक है. So 30 meter per second जो भी है ना, from north to south it is raining. रेन हो रहा है, मतलब रेन का स्पीड हम बता रहे हैं, रेन का स्पीड. ठीक है. So that can be written as VR is equals to कितना? VR is equals to 30 meter per second. ठीक है. So VC is equals to 10 meter per second. अरे बाप रे भगवान. Okay. Now say for example, अभी मैंने ये जो आपको डायरेक्शन दिखाया, this is the direction of what? Cycle. ठीक है. And whatever I am showing the direction here, it is the direction of क्या? VR. मतलब the direction of the rain. So ये जो डायरेक्शन है इधर, मतलब इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? माइनस वीसी इन द सेंस साइक्लिस्ट का रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है. से फॉर एग्जांपल फ्रॉम द नॉर्थ, हमें पता नहीं कि नॉर्थ से साउथ कैसे आ रहा है ओवर द साइकिल. नॉर्थ से साउथ, अभी साइकिल ऐसा जा रहा है तो नॉर्थ से साउथ ऐसा आ रहा है, नॉर्थ से साउथ ऐसा आ रहा है. सो वी डोंट नो द पर्टिकुलर डायरेक्शन. हम तो बोल रहे हैं नॉर्थ से साउथ आ रहा है, कुछ एंगल बना सकता है, हो सकता है कुछ एंगल बना दे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट माय डियर किड्स? हो सकता है कुछ एंगल बना दे, क्या? रेन. सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये तो बोल लिया, एंड व्हाट वी आर शोइंग हियर इज ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट. ये ब्लैक स्पॉट क्या है? द गर्ल हु इज राइडिंग द बाइसिकल ओवर द पाथ. ये पाथ है आपका. ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एंड नॉर्थ टू साउथ तो रेनिंग कर रहा है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ वी डोंट नो द डायरेक्शन कैसा. तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे बच्चों? वी आर गोइंग टू शो सम एंगल, कि इस एंगल से शायद रेनिंग हो रहा है. ठीक है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है लेकिन कुछ एंगल बना के आ रहा है. तो वो एंगल क्या है? तो इसी एंगल से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों? द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला. तो उसने क्या करना है कि कैसे उसका अम्ब्रेला होल्ड करना है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेनिंग, है ना. सो अगर नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो कौन से एंगल से उसको, क्योंकि एंगल तो पता नहीं, नॉर्थ से साउथ रेनिंग आ रहा है, वी डोंट नो द एंगल. सो टू सिंपली रेजिस्ट द रेनिंग हिट विद द अम्ब्रेला, शी शुड होल्ड विद द एंगल. तो ये थीटा क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा, है ना. बहुत ही सिंपल है बच्चों. क्लियर हो गया? वैष्णवी, सृष्टि, रक्षिता, प्रियंका, परी. ओके, प्रियंका राठौड़, वैष्णवी मठ. ओके फाइन. सृष्टि, ऐश्वर्या and सौंदर्ಯ. Good. So we go. VC ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? VC is what? Velocity of the cyclist. Sir, why you are not using the term called speed? Why you are using velocity? So we are talking about direction बच्चों. When we are talking about direction, we need to understand, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात चल रही है तो ये स्पीड मायने नहीं रखता है. सो वी नीड टू टेक वेलोसिटी, क्योंकि हमने कन्वेंशन ले लिया. कन्वेंशन यहाँ पे क्या लिया है?
ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है. सो वी आर ट्राइंग टू शो द डायरेक्शन हियर. तो इसीलिए मैंने whenever with the magnitude, अगर आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा है और else you are defining, so you need to take a वेक्टर क्वांटिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? वेलोसिटी है. तो इसीलिए vc को मैं स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट नहीं ले रहा हूं. आई एम टेकिंग vc एज द वेलोसिटी फैक्टर. ठीक है, चलो बच्चों. vr vr इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग रेन. ठीक है, चलो. ओके वैष्णवी. परी, in order to protect herself from the rain, okay, the woman must hold her umbrella in the direction of the relative velocity of the rain with respect to, मतलब रेन के हिसाब से, अगर रेन ऐसा आ रहा है तो रेन के हिसाब से आपको क्या पकड़ना पड़ेगा? वुमन को होल्ड करना पड़ेगा. वुमन कहां पे है? यहाँ पे साइकिल पे बैठी हुई है. ठीक है, तो दोनों का, वुमन कहां पे? साइकिल पे है. मतलब वी आर और वीसी दोनों एक साथ लिखना पड़ेंगे. लेकिन कैसे? सी हियर, velocity, relative velocity of the rain with respect to the relative velocity of the cyclist, है ना? तो VRC is equals to VR minus VC. मैंने आपको एक चीज बोला है बच्चों, ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? लेट मी टेल यू. whenever we are taking, रेन का कितना स्पीड देखो यहाँ पे बच्चों, 30 है, और साइकिल का कितना है? 10 मीटर. So can we write like this? VR is greater than VC. अगर VR is greater than VC है तो कंडीशन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. And they are saying that कि साइक्लिस्ट को अम्ब्रेला से, साइक्लिस्ट को अम्ब्रेला लेके रेन से प्रोटेक्ट करना है. मींस शी नीड टू डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, क्योंकि वो ज्यादा है. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? VR प्लस माइनस VC, है ना? तो ये अगर डायरेक्शन किधर जाने की कोशिश कर रहा है? टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट. तो अगर टुवर्ड्स द ईस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, वी आर टेकिंग माइनस वीसी, है ना? तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी आर माइनस वीसी. तो वी आर कितना है बच्चों? सो दैट इज 30, है ना? सो दैट इज 30. फिर वीसी कितना है? 10 है. सो दिस कैन बी रिटन एज 20 मीटर पर सेकेंड. ये आपका क्या है? दिस इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. नाउ ओके, सो दिस इज द magnitude, this is the speed, this is the speed of what? Speed of the relative velocity of the rain with respect to cycle. मतलब जो रेन का हिट है ना, वो कितने स्पीड से गिर रहा है अम्ब्रेला पे? 20 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, ये चीज हमने फाइंड कर लिया. बट दे हैव नॉट आस्क्ड द मैग्नीट्यूड हियर. यहां पे उन्होंने क्या पूछा है? यहां पे उन्होंने पूछा है डायरेक्शन. सो टू राइट आउट द डायरेक्शन, आप लोग क्या करोगे बताओ? आप लोग क्या करोगे? ये अगर थीटा है, मैं एक रेड कलर लेता हूं बच्चों, एंड आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो VC है, क्या मैं इधर ले सकता हूं? एंड ये जो VR है, तो ये तो VR है. ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, VR एंड VC, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं इसको एक प्रोपोर्शन में लिखूं, VR एंड VC, so how we can write? So before cot, tan will come, tan आता है. So tan theta is equals to what? Opposite by adjacent. क्या मैं बात जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं बच्चों? VC by VR आता है. VC is nothing but this is the opposite side. Is that clear? What is this? This is nothing but adjacent side. So opposite by adjacent is nothing but tan theta. So you can write VC by VR. So what is VC? What is VC? That is 10. And what is VR? That is 30. So 0, 0 got cancelled. So this is 1 by 3. So if this is 1 by 3, you know, my dear kids, this can be written as theta is equals to tan inverse of 1 by 3. Okay.
So listen up. Theta is equals to tan inverse of 1 by 3 means 1 by 3 कितना होता है? So this can be written as theta is equals to tan inverse of 0.33. Okay. So this can be implied as theta is nearly equals to 18 degree. So this is your right answer, my dear kids. So is that clear, my dear kids? Any confusion over this? Vaishnavi, Priyanka, Rakshita. Okay, Srishti, Priyanka, Priyanka Rathod, Vaibhavi Pawar. Okay, okay. So thank you, my dear kids, for listening patiently. So the time is over. So I'm going to close the class, my dear kids. Parijain, Rakshita, Shrishti. Okay, thank you. So if you felt easy for this solution, okay, मैंने थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना क्लमजी टाइप का लिखा है. अगर आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा है, सो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल. ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और खूब सारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फुल लेंथ वीडियोस देखा करिए यार. ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंसली माय डियर किड्स. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू माय डियर किड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये वुमन जा रही है जहां पे रेन हिट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रेन हिट कर रहा है, तो उसको उसने अम्ब्रेला कैसे पकड़ा है? शी इज होल्डिंग अम्ब्रेला इन सच अ वे दैट, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शी इज होल्डिंग अम्ब्रेला विद अ डिफरेंट कलर आई एम ट्राइंग टू शो यू. ठीक है, ये ऐसा है एक्स एक्सिस. ठीक है, सो इफ दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, so what she is trying to hold umbrella, she is trying to hold the umbrella with the 18 degree, ऐसे पकड़ रही है बंदी. तो थीटा कितना है? So she is trying to hold, wait, so she is trying to hold umbrella like this. Okay, तो umbrella का मैं यहां पे ऐसे, fine, she is trying to hold like this, तो मैंने थीटा बना लिया. So theta is equals to nearly equals to 18 degree. Is that clear? चलो, okay, we'll start the numerical. ठीक है, my dear kids, listen up. So the number of the numerical is, number कौन सा है? So 11th हो गया था, so 12th we are going to make, right? Okay, listen up my dear kids. So 12th numerical, a man, अभी मैंने man वाला लिया, ठीक है, a man can swim with a speed of, with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इन स्टिल वाटर. सर ये स्टिल वाटर क्या होता है? स्टिल मतलब स्टैंड स्टिल, वहीं पे, मतलब रुका हुआ. ठीक है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग does he take to, he take to cross a river, river 1.0 किलोमीटर. ठीक है, मतलब स्टिल वाटर है, रुका हुआ है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत स्पीड है. कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर. मतलब कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं रहता है. ठीक है, जो जिसका स्पीड बहुत ही स्लो हो. तो जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो कितना है? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर वाइड. ओके, if the river flows steadily, if the river flows steadily at 3 kilometer per hour,
at 3 kilometer per hour. ठीक है, and he makes his strokes normal to the river current. ठीक है, he makes his strokes normal to the river current, मतलब अगर रिवर ऐसा फ्लो कर रहा है तो उसके जो हाथ मारने का है ना, इफ ही मेक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, फ्लो को अगर ऐसे हाथ मार के वो आगे बढ़ना चाहता है तो ठीक है, he makes his strokes normal to the river current. How far, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा शायद. How far down the river river does he go, मतलब ऐसे अगर स्ट्रेट हाथ मारता है तो वो बंदा कहां तक जाके रीच करेगा, क्योंकि ऐसे विड्थ है, ये विड्थ है आपके रिवर की, ठीक है, और ये रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही है, एंड ही इज स्ट्रोकिंग टू द रिवर नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, और वो बंदा जाके कब तक रीच होगा, ठीक है, ऐसे. सो डू यू गॉट दिस पॉइंट माय डियर किड्स? क्या आपको ये चीज पता चल गई? ओके, सो द रिवर डज he go when he reaches the other bank, when he reaches the other bank. ठीक है, चलो. सो दिस इज योर क्वेश्चन माय डियर किड्स. वंस यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, आप एक बार वैभवी पवार, वैष्णवी मठ, सृष्टि नांदियाल, वंस यू रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली माय डियर किड्स, ठीक है. सो इफ यू आर read this question, you'll come to know that कि we need to make a bifurcation. हमको bifurcation करना है, और bifurcation है क्या वैसे? So the bifurcation of unknown and known quantities. So what actually we are trying out to find? So we are trying out to find the distance covered uh, with flow of the river, है ना? तो distance मतलब okay, distance covered with the flow of river. Okay, flow, F for flow, O for off, R for river. So distance covered from for flow of river. ठीक है, इसको ये चीज फाइंड करना है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द नोन क्वांटिटीज? यहाँ पे देखो, अ मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ द मैन के लिए हम क्या करेंगे? वीएम करेंगे, ठीक है, जिसको आप 4 किलोमीटर पर आवर को यू शुड कीप एज इट इज, तो उसको आप एज इट इज रख सकते हो. तो लास्ट में you can make conversion of this, or else you can make early conversion only. तो आप कर सकते हो. अगर अर्ली कन्वर्जन करोगे तब भी बेटर है, बाद में करोगे तब भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं वैसे. ठीक है. नाउ द स्पीड ऑफ द रिवर दैट कैन बी रिटन एज VR, मतलब स्पीड ऑफ द रिवर. VR कितना रहेगा बताओ मुझे फट से. VR इज या 3 किलोमीटर पर आवर. Okay, Priyanka and Shrishti. Now width of the river is, you can write it as width. ठीक है, width is equals to कितना है? It's 1 किलोमीटर. चलो ठीक है. सो दीज आर अननोन एंड नोन क्वांटिटीज. ये बाइफर्केशन करने के बाद थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया दौड़ने लगता है. प्रियंका, वैभवी, सृष्टि, वैष्णवी, सो लिसन अप माय डियर किड्स. तो अभी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम ले रहा है वैसे, इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर, डिस्टेंस, जिसको मैं डिस्टेंस बोलूंगा. अगर ये रिवर है
तो इसको पार करने के लिए जितना टाइम लगता है, दिस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द रिवर। तो डिस्टेंस ऑफ द रिवर, फिर नीचे क्या, स्पीड ऑफ द रिवर। तो ये फॉर्मूला कौन सा पता है बच्चों? बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। सो दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला, v इज इक्वल टू डी बाई टी, है ना, है ना। सो इसी को हमने घुमा के लिखा है, v को t के जगह भेजा है, t को v की जगह भेजा है, सिंपल है। सो डिस्टेंस ऑफ द रिवर कितना है? डिस्टेंस ऑफ द रिवर वी आर गोइंग टू मेक दैट, ठीक है। सो लिसन अप माय डियर किड्स, विड्थ जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिसको डिस्टेंस ऑफ द रिवर बोल रहे हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज 1, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द रिवर कितना है बताओ? दैट इज so speed of the river or speed of the man. So what we are trying to find out here, time taken to cross the river, मतलब river को cross करने के लिए हमको speed of the river लेने के बजाय speed of the man लेना पड़ेगा बच्चों। Because why I'm telling speed of the man, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, we said that time taken to cross the river, तो कौन क्रॉस कर रहा है? हमने यहाँ पे गलती से रिवर लिया था, so we should take the speed of the man, so it should be taken as 4, ठीक है। so this is 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। so ये क्या था आपका? किलोमीटर था, 1 किलोमीटर। so किलोमीटर किलोमीटर गेट कैंसल्ड, so 1/4 कितना? आवर। so टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, है ना। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर हमारा कितना आ गया? 1/4 आवर, मतलब सवा, नॉट सवा घंटा, 54 घंटा, ठीक है, 1/4, 1 घंटे का चौथाई भाग, ठीक है। चलो, सो इतना हमने फाइंड कर लिया। सो नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड विद द फ्लो, विद द फ्लो ऑफ द रिवर। तो हमने रिवर के फ्लो होने के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर करा? ओके, प्रियंका राठौड़ 3 इंटू 1/4 कैसा आएगा बताओ? सो स्पीड ऑफ द रिवर को लिखना पड़ेगा, फिर टाइम, टाइम को लिखना पड़ेगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर तो हमने फाइंड ऑलरेडी करा है, दैट इज 1/4, है ना। सो दैट इज 1/4 एंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं बच्चों इसको। VR is how much? 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना है? 1/4 आवर। तो ये आवर आवर कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन राइट 3/4 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस। सो 3/4 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस को आप क्या करोगे? सो यू शुड कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डिस्टेंस, distance covered with the flow of river, D4. D4 in the sense F for flow and O for off river. तो distance covered C4R C4 DC4 ऐसे लिखेंगे, मतलब distance covered with flow of river। चलो ठीक है, वरना C को निकाल देते हैं, खामा खामे कॉम्प्लिकेशन। सो 3/4 इंटू 1000, ठीक है। सो 4 1 जा 4 250 जा मीटर एज इट इज, क्योंकि किलो का हमने क्या लिखा? किलो का हमने 1000 लिखा था, ठीक है। सो दिस शुड बी 250 into 3 is 750 मीटर, है ना, D4। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? ये आपको क्लियर हो गया? वैष्णवी, परी, प्रियंका, वेरी गुड, प्रियंका राठौड़, ओके, सृष्टि नांदियाल, वैभवी पवार, वेरी गुड। ओके माय डियर किड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। आपने बहुत अच्छी तरह से सुना ये चीज। I felt very much happy. Okay, if you really liked this video, go to my YouTube channel
give big thumbs ups and comment it on my YouTube channel. अच्छा बुरा जो भी है और जो भी improve करना है वो बोलिएगा, and share this video as much as possible with your other college friends. So this is a kind of request समझ लो बच्चों, to boys as well as girls. I am addressing this, not only to the girls. तो girls को address कर रहा हूँ, सिर्फ girls को share करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मत समझिए boys. So you too peoples are going to watch this video, I know that. ठीक हो, ठीक है. तो इन वीडियोस के साथ मैं एक्स्ट्रा इंट्रो और आउट्रो वीडियोस इसके साथ जोड़ के नहीं बनाता हूँ. वट एवर आई एम आस्किंग यू, सो आई एम आस्किंग हियर ओनली. सो टू सिंपली कहते हैं ना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड प्लीज आस्क योर अदर कॉलेज फ्रेंड्स टू मेक सब्सक्राइब विथ ऑल नोटिफिकेशंस ऑन. ठीक है. एंड ट्राई टू सी फुल लेंथ ऑफ वीडियोस. ठीक है. अगर आपको कहीं पे बोर लगा तो आप उसको थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, लेकिन सिर्फ व्यू करके वहां पे कमेंट मार के जाओगे तो YouTube स्टूडियो पे मुझे पता चलता है. सो आई एम नॉट आस्किंग दैट कि देखना ही पड़ेगा. आई एम नॉट मेकिंग एनी जबरदस्ती. सो व्हाट आई एम ट्राइंग, सो ऑल टीचर्स आर फेसिंग वेरी मच डिफिकल्टी टू टीच यू पीपल्स. if teachers are taking difficulty to teach you properly on the screen, जब आप हमारे सामने नहीं हो तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से टीच कर पाए, तो प्लीज वी आर आस्किंग यू to support us. Okay, not only me but also for other lecturers. ठीक है. Anyhow, thanks for listening patiently. We'll meet tomorrow, my dear kids. Till next video, bye bye and Jai Hind.